Hmm. So today we are going to discuss nested loop. So whenever the body of a loop contain another loop, whether it is the for loop or it is while loop, then such kinds of loops are known as nested loop. For example, if we discuss about the syntax of nested for loop, so statements before for loop for loop variable in range step start 1 stop 1 and step 1 colon. After that, for loop variable to in range start stop 2 and step 2 colon s1 s2 means statement 2 up to so statement n, just like these are the statement of this loop. In the same way, this loop not only contain the for loop but also some other statement like s2 s3 and sn. And after that there are also the statements after the for loop. So let's understand. So there may be one, two, or three statements that are before the for loop. It may be input statement, it may be print statement, or it may be a for loop itself and if else, nested if else, whatever, any kind of statement may be there before the for loop. So after the statements, the keyword for, whenever the keyword for encounter, then interpreter comes to know that interpreter is going to deal with looping iterations. After that, there is a variable which keeps the track of this for loops. This is called the loop variable. In is a keyword and range is a function. Range is a function which takes three parameter. Start, you all are very familiar with these three parameters: start, stop, and step. So these are the three parameters which related to the outer for loop. This is called the outer for loop. What it called? Outer loop. Okay. So start, this step, and this step stop. All three parameters are related with outer for loop. And what about this loop? This loop is the inner. This is known as inner for loop. Okay. Just after that, this whole statements, these are the set of statements which are the part of in outer for loop. In the same way, these are the statements which fell under the inner for loop. Okay. And these are the statement 2, statement 3, statement 4. These are the statements related to the outer for loop. Okay. So how these loops work? How these loops work? So let's understand. Let me clear all these things. Done. Uh, these through first of all, this loop variable, outer loops variable, gets its value from the argument start. It may be 1, 2, 3, and by default is 0. After that, if this step value is positive, by default this value is positive and increase by 1 by default. You can increase it by 2, 3, or n number of time. Okay.
and this step variable, if this value is positive, then there is a condition, this loop variable always check less than, loop variable less than this stop value, and it check till n minus 1. Okay, the condition comes true till n minus 1. If we pass 5 here and we pass here 1, then it runs 1, 2, 3, and 4 number of times. It comes to false at step 5. Okay, so after that, how it works? In the first iteration of this outer for loop, it and if it this statements comes true, if this loop variable gets the start value and this is less than the stop value, then it's true and it enters in the inner loop, or we can say it enters the body of the outer loop. This is the body of outer loop. Now it executes the first statement, and this is the for loop again. So again it start for loop and it initialize this loop variable which is related to the inner for loop. Okay, and initialize this start value. After that it checks this value, whether this value is less, and depend upon the condition. Okay, after that if this condition comes true, then these are the four statements that are related to the inner for loop. After executing these statements, these four statement or five statement, one statement, okay, it jumps directly to the step value of inner loop. It will not execute these statements, statement one, statement two. Okay, it will not execute these statement. No, first of all it complete all the iterations of inner loop. Okay, all the iterations of inner loop. It again check whether this condition true or not after increasing the value, whatever the increment is given by the step parameter. Okay, if this condition again true, then again it enter to the body, execute all these statements and come go this in this manner. It continually iterate till this condition false. Okay, after that whenever this condition comes false, अगर ये condition false हो जाती है, then it directly jumps to these statement. These are the, this is the second, this is third, this is fourth statement, and after executing this statement, it now redirect to which statement? Step 1. It increase or decrease depend upon the condition. Again it check the condition for outer variable. If it is true, the same process will continue till this process, this outer loops condition comes false. Okay, after that when this condition comes false, then the statement after the for loop get executed. Okay, क्लियर है? तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि ये जो आउटर लूप है जब एक बार चलता है, तो इनर लूप जो है n नंबर ऑफ टाइम चलता है. इट मींस अगर आउटर लूप 4 टाइम चलेगा और इनर लूप एक बार में 3 बार चल रहा है, तो ये क्या है? 4 into 3, 4 into 3, टोटल इटरेशन 12 इटरेशन होंगी. क्लियर है? अगर बाहर वाले लूप की 4 इटरेशन है, तो अंदर वाला लूप हर एक इटरेशन के लिए 3 बार चलेगा. 1, 2, 3, 4. तो 4 into 2, 12. तो टोटल नंबर ऑफ 12 दोनों की मिला के इटरेशन होंगी. ओके, क्लियर है? चलिए, तो एक प्रोग्राम इसका बनाते हैं. सो द बेस्ट programs to practice this nested for loops are pattern. So we will start from very simple pattern. This is the easiest way to practice the nested loops. Okay, so how to write a program for this? Okay, done. So let me explain you how we can deal all types of loop. Let's take one more example which is easier than this example, this one.
एक प्रोग्राम से आप 4 प्रोग्राम बना सकते हैं। एक प्रोग्राम से आप 4 प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ बच्चा। डन। तो यहाँ पे देखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ रोज। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3 and 4 and 5. So total number of, there are 5 rows. Okay, and how many columns are there? 4 columns are there. Okay, so the outer loop deals with row. Outer loop deal with row and inner loop deal with columns. जब आउटर लूप एक पहली बार चलेगा तो इनर लूप कितनी बार चला? 4 बार। फिर आउटर लूप दूसरे स्टेप में चला, इनर लूप फिर 4 बार चला, फिर 4 बार चला। तो इस तरीके से क्या है, ये काम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, आउटर लूप को 4 टाइम बाउंड करना है। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1, कितनी बार चलाना है? 5 टाइम। तो n-1 5 टाइम मतलब एक प्लस करना पड़ेगा, 6 1 एंड कॉलन। उसके बाद इनर लूप क्या करेगा, 4 टाइम चलेगा। ठीक है, तो इनर लूप इसकी इंडेंटेशन में लिखना है फॉर जे इन रेंज। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगेगा, बस सिंपल सा है। यहाँ पे क्या है, 5 लिख दीजिए। 1 से लेके 5 मतलब 1 2 3 4 और 5 पे फॉल्स, 1 से इंक्रीज किया। और इसकी इंडेंटेशन में प्रिंट क्या करना है, ये इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए कितनी इंडेंटेशन छोड़ी हुई है। तो प्रिंट में क्या करना है, प्रिंट में हमें चाहिए क्या, स्टार। तो हमने स्टार प्रिंट किया और कॉमा डाल के यहाँ पे एंड इक्वल स्पेस किया। क्यों किया, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बनाना कैसे है चार्ट, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने रफ वर्क में ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। डन। एंड दिस साइड आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो। क्लियर? अब यहाँ पे जे की वैल्यू के लिए क्या करना है, ये सारी जे की वैल्यू है। डन। और यहाँ पे क्या करना है, आपने स्टार्ट कर दीजिए। हम आई इन रेंज 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 लिख लीजिए और लेस देन 6। क्लियर? लेस देन 6, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। तो ट्रू है तो स्टेप से पहले ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। कहाँ से? यहाँ से कंडीशन चेक करने के बाद। उसके अंदर एक और लूप मिला फॉर जे, तो जे वेरिएबल बन गया हमारा। जे इन रेंज 1, तो जे को 1 वैल्यू दे दिए। लेस देन क्या है, जे की लेस देन यहाँ पे लिखनी है क्योंकि बाद में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे एंटर कर गया। देखिए ये पॉजिटिव थी इसलिए मैंने लेस देन की कंडीशन चेक की है। ओके, उसके बाद क्या है, प्रिंट स्टार। तो ये मेरा पहला स्टार प्रिंट हो गया। और एंड इक्वल स्पेस का मतलब क्या है, मेरा पॉइंटर जो है यहीं पे है। अभी भी कहाँ है मेरा पॉइंटर, इसी जगह पे है विदाउट एनी स्पेस। ओके, उसके बाद मैं कहाँ गया, यहाँ से गया मैं इस जगह पे। और जे की वैल्यू 1 + 1 कितनी बन गई, 2। 2 लेस देन 5, यहाँ से चेकिंग की मैंने, 2 लेस देन 5 कंडीशन अगेन ट्रू। तो ये फिर से अंदर अंदर एंटर कर गया। और प्रिंट क्या मिला, स्टार। प्रिंट मिला स्टार। स्टार और एंड इक्वल स्पेस, तो यहाँ पे फिर से मेरा पॉइंटर, कर्सर मेरा यहीं पे रहा। क्लियर? उसके बाद फिर से ये ऊपर गया। ऊपर जाके इसने इसको इंक्रीज किया। इट बिकम्स नाउ 3, 2 + 1 3। क्लियर बच्चा? तो इसके बाद क्या हुआ, 3 लेस देन 5, इसको चेक किया। 3 लेस देन 5 कंडीशन अगेन ट्रू, प्रिंट स्टार। स्टार प्रिंट हुआ थर्ड वाला, थर्ड स्टार मेरा प्रिंट हो गया। अब डन। उसके बाद पॉइंटर यहीं पे है, एंड इक्वल स्पेस। यहाँ से फिर गया ऊपर और क्या किया इसने, इंक्रीज किया एक और से, बन गया 4, 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5 अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से प्रिंट हुआ स्टार। पॉइंटर कहाँ रहा, यहीं पे रहा। ओके, उसके बाद फिर ऊपर गया। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर एक से इंक्रीज किया। 5 लेस देन नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसकी पहली स्टेटमेंट थी आउट इनर लूप की। हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बनाइए, क्या, सिंपल इसी इंडेंटेशन में प्रिंट
प्रिंट खाली कर दीजिए बस। इससे क्या होगा, आपका पॉइंटर जो यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे था आपका पॉइंटर, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आने के लिए, ठीक है, अभी तक हमारा क्या प्रिंट हुआ है, सिर्फ ये 4 स्टार प्रिंट हुए हैं और पॉइंटर यहीं पे था, तो हमने इसको यहाँ पे लेके आना था, तो यहाँ पे लेके आने के लिए हमने क्या किया, स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके आउटर के पास जाएगा। क्लियर। आउटर के पास जाने के बाद क्या हुआ, आउटर के पास जाने के बाद इसने क्या किया, फिर से चेक किया, क्या करने के बाद, इसको 2 बनाने के बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 से इंक्रीज हुआ, स्टेप वैल्यू 1 हो गई, तो 2 लेस देन 6 कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब फिर से ये इनर में एंटर कर गया और फिर से इसको इनिशियलाइज हुआ 1, इसको जे को, 1 लेस देन 5, लेस देन 5 कंडीशन फिर से ट्रू हो गई बच्चा, ठीक है, 1 लेस देन 5, तो फिर क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, एक स्टार और प्रिंट कर दिया, डन। उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ से, और पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंटर हमारा यहीं पे है, अभी भी कहाँ पे है, पॉइंटर यहीं पे है, तो ये ऊपर जाके इसने क्या कर दिया, 1 से इसको फिर इंक्रीज कर दिया, 2 3 4 और 5 के लिए फिर फॉल्स हो जाएगा, इस तरीके से ये 4 स्टार फिर प्रिंट कर देगा। और ये स्टेटमेंट जो है इसको यहाँ पे ले आएगी नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये बन जाएगा 3, 3 छोटा है 6 से, कंडीशन फिर ट्रू, फिर हमारे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, अंदर वाला 4 बार फिर ट्रू होगा, 1 2 3 एंड 4 और 5 पे फॉल्स, डन। फिर ये ऊपर जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 भी 1 2 3 4 और 5 पे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसने क्या कर दिया, 4 स्टार प्रिंट हो गए। फिर ये ऊपर जाएगा 5, 5 के लिए 5 लेस देन 6 फिर ट्रू हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पे ये फॉल्स हो गया क्योंकि लेस देन 5 है। फिर से इसने क्या कर दिए, 4 स्टार फिर प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम बन चुके हैं, ये प्रोग्राम तो हमारा बन गया। यहाँ पे मैं आपको और प्रोग्राम दिखाता हूँ, देखिए कैसे। लेट मी इरेज द स्क्रीन। करो अब। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे आपके कितने प्रोग्राम बन गए हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह आई प्रिंट करवाता हूँ, जो कि ये वैल्यू है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 1 पहली इटरेशन में, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3, फिर 4 4 4 4 5 5 5 5, ये हो गया। अब यहीं पे मैं स्टार की जगह जे प्रिंट करवाता हूँ, तो जे की वैल्यू क्या है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन गया प्रोग्राम, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम थे, पैरेलल बने। क्लियर। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक बार चलते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पापा अभी आपको टैबलेट पे काम है। हाँ काम है बेटा, जाओ आप नीचे। हाँ, तो यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 to 1 colon for j in range 1 to 5 to 1। प्रिंट क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए मैं सिंपल स्टार प्रिंट करता हूँ, क्या होता है देखिए, सिंपल स्टार, कुछ भी नहीं लिखता आगे। चलिए ये देखिए, एक ही वर्टिकली सारे स्टार प्रिंट हो गए, क्योंकि इसने क्या किया,
एंड इक्वल है ही नहीं कोई, तो यहाँ पे मैं एंड इक्वल करता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा देखिए, यहाँ पे क्या है, एंड इक्वल स्पेस। अब यहाँ पे देखिए क्या फर्क पड़ता है, अब हॉरिजॉन्टली हो गए सारे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कुछ स्टार हमें हॉरिजॉन्टली, जैसे पहले 4 हॉरिजॉन्टली, फिर 4 हॉरिजॉन्टली, 4 करके प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे मैं निकलने से पहले अगर एक एंटर कर दूं, मतलब कि प्रिंट कर दूं, तो क्या होगा देखिए, ये बन गया जो हमें चाहिए था। इसको थोड़ा सा खुला खुला करना है तो एंड में यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, ये खुला खुला हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस स्टार की, अगर मैंने देखिए क्या किया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई की वैल्यू इसमें प्रिंट कर देते हैं डबल इनवर्ट। बच्चा ये क्या बन जाता है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होती है, ये आई प्रिंट करेगा आपका, ठीक है। तो आपने क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो डायरेक्टली आई पास कीजिए ना, यहाँ पे डायरेक्टली आई पास कीजिए। देख के बच्चे बैठो, देखिए आई की वैल्यू पास की, ऐसे नहीं करते, पापा पढ़ा रहे हैं ना बेटा। अगर आप यहाँ पे जे की वैल्यू पास करोगे तो क्या आउटपुट आएगी, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आई और जे की ले जाओ, आई और जे की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। कई दफा क्या होता है, अब हमें क्या करना है, ये भी कर सकते हैं हम, आई प्लस जे की, लॉजिक है बेटा रीजनिंग के जैसे, जितने मर्जी लॉजिक लगा लो, देखो क्या आउटपुट आई, 2 3 4 5 3 5 4 5 6 4 5 6 7 6 7 8 9 6 7 8 9, है ना। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट आई, देखिए लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम क्लियर। तो इस तरीके से भी प्रोग्राम आ सकता है, लॉजिक लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ और आउटपुट आएगी, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेट इतने नहीं आते, सिंपल से प्रोग्राम आएंगे आपको एग्जाम में जान, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब पैटर्न किस तरीके के पैटर्न आते हैं, और पैटर्न आते हैं, ये वाला पैटर्न आता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, स्टार, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टाइम पे है, फर्स्ट टाइम देखिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इसको क्या हो रहा है देखिए, पिछले प्रोग्राम में हमने बनाया क्या था कि आई की वैल्यू देखिए कैसे चेंज होती है। आई की वैल्यू पहली बार क्या है 1, तो हमें कितने स्टार चाहिए 1। आई की वैल्यू दूसरी बार क्या होगी 2, तो हमें कितने स्टार चाहिए 2। तो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे क्या कर देंगे, आई प्लस 1 कर देंगे बच्चा, आई प्लस 1। तो क्या होगा, या तो इसको 0 से स्टार्ट करके सिंपली आई कर दो, इसको 0 से स्टार्ट करके आई कर दो। तो पहली बार क्या है 0 और 1 पे फॉल्स, फिर दूसरी बार आई की वैल्यू 2 होगी, 0 1 2 पे फॉल्स, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 0 1 2 तीन बार चलेगा, 3 पे फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका प्रोग्राम क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट करवाना है हमें। तो लेट मी इरेज दिस, बन गया। ये स्पेस इतनी इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल स्पेस दिया है, इसको इरेज भी कर सकते हो आप। डन। तो ये बन गया आपका। यहीं पे अगर आप क्या करोगे, आई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या आएगा 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जे की वैल्यू प्रिंट करोगे तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये 0 आया। अब यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो इसको यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डन, ये देखिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपके 6 प्रोग्राम हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, ये प्रोग्राम बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला प्रोग्राम। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चा, देखिए यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 4 स्पेस है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, 1 2 और यहाँ पे 1। तो ये प्रोग्राम पीछे वाले प्रोग्राम जैसा ही है,
लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इनर में 2 फॉर लूप प्रिंट करवाने हैं, 2। एक क्या करेगा, हमारी स्पेस प्रिंट करवाएगा। तो पहली बार हमें कितनी स्पेस चाहिए, 4 स्पेस चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से, और इसको i तक चलाएंगे और इसको -1 कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ये मैं आपको उस पे समझाता हूँ, क्या है इसका लॉजिक। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, और यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार लगा दीजिए आप बस। सॉरी, लेट मी कमेंट आउट ऑल दिस लाइन। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, देखिए मैंने वहां पे स्पेस नहीं प्रिंट कराई, वैल्यू प्रिंट करवा दी। देखिए यहाँ पे जे की, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिंपल स्पेस प्रिंट करवानी है, एक एक। हो गया क्लियर। अब यहीं पे अगर आप आई प्रिंट करवा दोगे तो क्या बनेगा, ये बन गया। अगर जे प्रिंट करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा के बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ है एक्चुअल में यहाँ पे। हम्म, एक मिनट मेरे को इसकी सेटिंग करनी है। हम्म, एक मिनट बेटा बस। चलिए मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या था, फॉर आई इन रेंज 1 से 6 तक और 1 का इंक्रीमेंट। फिर था फॉर जे इन रेंज 1 से, सॉरी 5 से आई तक -1। और प्रिंट क्या किया था हमने इसके अंदर, स्पेस करके, या वहां पे भी एंड में भी डाल सकते हैं, एंड इक्वल दिस। फिर एक और लूप लगाया फॉर के भी लगा सकते हो, जे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज 1 से i+1 और 1 का इंक्रीमेंट। और प्रिंट क्या किया, स्टार किया, और एंड इक्वल स्पेस किया, और बाद में आके यहाँ पे एक प्रिंट का फंक्शन लगाया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपना चार्ट बना लेता हूँ। आई लेस देन 6, आई को क्या मिला 1। अब उसके बाद क्या है, जे जे इन रेंज 5, यहाँ पे जे का भी बना लेता हूँ। एंड जे ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि माइनस है, देखो ग्रेटर देन आई, आई की वैल्यू कितनी है 1। तो 5 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू। तो क्या प्रिंट हुआ, स्पेस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको हाइपन को मैं स्पेस मान लेता हूँ एक बार, तो आपको पता लग जाएगा।
उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया और ये कम हुआ, 5 माइनस 1 4, 4 के लिए भी ट्रू है क्योंकि 4 ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक और स्पेस प्रिंट हुआ। फिर ऊपर गया, फिर 3 हो गया, 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फिर ट्रू, फिर एक स्पेस प्रिंट हुआ। फिर 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू, फिर एक स्पेस प्रिंट हुआ। फिर और ऊपर गया, कंडीशन अब फॉल्स हो गया, कब 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, तो यहाँ से उसके बाद ये क्या करेगा, फॉल्स होने पे इसके पास चला जाएगा। ठीक है, फॉर के इन रेंज 1, तो यहाँ पे के नाम का वेरिएबल बना। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, के को क्या मिला 1, लेस देन क्या है आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 2, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो इसके अंदर एंटर कर गया, प्रिंट क्या किया स्टार, एंड इक्वल यहीं पे है। फिर यहाँ से ऊपर गया और क्या बना 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। तो उसके बाद क्या है, यहाँ से फॉल्स होने के बाद ये स्टेटमेंट मिली इसको तीसरी, ये आउटर लूप की फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट मिली तो इसने इसको नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा आउटर लूप का इंक्रीमेंट करने के लिए, ये बना 2। अब यहाँ पे फिर इनर लूप क्या है, 5 को इनिशियलाइज हुआ जे को, और लेस देन ग्रेटर देन आई मतलब ग्रेटर देन 2, तो 4 5 4 3 और 2 पे फॉल्स, तो कितनी बार चला 3 बार, तो कितनी स्पेस प्रिंट होंगी 3। उसके बाद ये कहाँ पे ज्वाइन कर गया, फॉर के इन रेंज 1, के को मिला 1 लेस देन आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 2 और 3 पे ये फॉल्स हो जाएगा, 2 बार चला तो क्या प्रिंट कर रहा है स्टार। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ले गया, फिर ऊपर गया, ये 3 बन गया, अब ये कितनी स्पेस प्रिंट कराएगा 5 4 3 पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्पेस इसने प्रिंट करवा दी, और इसने क्या किया 1 2 और 3 और 4 पे फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया 3 स्टार प्रिंट कर दिए। इसी तरीके से फिर 1 स्पेस, फिर 4 स्टार, फिर कोई स्पेस नहीं, फिर 5 स्टार। तो कुछ प्रोग्राम तो बेटा आपके ये, अगर आप ये टेबल बनाओगे ना, ये वाला टेबल, ये देखिए आपको पता लग जाएगा क्या प्रिंट करवाना है, आपको पता लग जाएगा क्या प्रिंट कराना है। अगर मेरे को ऐसा चाहिए तो के प्रिंट कराना है, अगर मेरे को ऐसा चाहिए आउटपुट तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, अगर मेरे को क्या चाहिए आई प्रिंट करके क्या मिलेगा, के प्रिंट करके क्या मिलेगा। ठीक है,